Today we'll study balancing of redox reaction. Now this one equation will be given to you and we have to balance the equation using redox reaction. So there are steps. Step by step we have to balance the equation. Two methods are used to balance chemical equation for redox process: oxidation number method and half reaction method, or ion electron method. So from this first only we have to study. Ion electron method is not there. So oxidation number method is illustrated in the following steps. First step, write the unbalanced equation for the redox reaction. Balance the equation for all atoms in the reaction except hydrogen and oxygen. Identify the atoms which undergo change in oxidation number and by how much. Draw the bracket to connect atoms of the elements that changes the oxidation number. So first step is we have to write the unbalanced equation, and in that balance the equation for all atoms in the reaction. सबका balancing करना है except hydrogen and oxygen. Okay, so identify the atoms which undergo change in oxidation state. कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है पहले, और कितने से चेंज हो रहा है वो हमें ब्रैकेट ड्रॉ करके शो करना है. एंड देन शो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम of the oxidized species and hence the net increase in oxidation number. Similarly, show a decrease in oxidation number per atom of the reduced species and net decrease in oxidation number. Determine the factors which will make the total increased and total decrease equal. Insert the coefficient into the equation. देखो, first step is we have to assign the oxidation number to each atom और देखना है कि कौन सा एटम इन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है ऐसे दिखा रहा है. अगर चेंजेस है तो उसको हम ब्रैकेट से दिखाएंगे कि कितने से चेंज है. दूसरा स्टेप है शो द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम के कितने हो रहे वो हमें दिखाना है. और उसके बाद डिटरमाइन द फैक्टर विच विल मेक द इन टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इक्वल. तो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इक्वल होने चाहिए. अगर नहीं है तो हमें उनको इक्वल बनाना है. देन थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन एटम से. अगर एक ऑक्सीजन एटम कम है तो उस साइड में हमें एक H2O इंसर्ट करना, मतलब ऐड करना है. 1 H2O इज एडेड फॉर 1 ऑक्सीजन एटम. बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस टू द साइड हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम. और जिस साइड पे हाइड्रोजन एटम कम है वहाँ पे हमें H+ आयन ऐड करना है. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. नाउ देन फोर्थ स्टेप इज if the reaction occurs in basic medium then add OH ions equal to the number of H+ ions added to the steps. Step 3, on both the side of equation the H+ ion or OH- ion on the same sides of the reactions are combined to give H2O molecules. देखो, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हमें OH आयन ऐड करना है और H+ और OH आयन्स को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O. देन चेक द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड द चार्जेस. इट इज़ बैलेंस्ड. तो हमें सब चेक करना है कि सब नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस भी बैलेंस हो गए हैं कि नहीं है. सो फॉर एसिडिक मीडियम द स्टेप 4 इज़ ओमिटेड. तो स्टेप 4 जो है वो OH आयन ऐड करना है ना, वो हमें एसिडिक मीडियम में नहीं करना है. यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड write the net ionic equation for the reaction of potassium permanganate with ferrous sulfate FeSO4 MnO4 minus plus Fe2 plus, it gives Mn2 plus Fe3 plus in aqueous state. See, this equation is given which is unbalanced. Okay, so first step is what? Write the skeletal equation. जो इक्वेशन दिया है उसको हम पहले वैसे के वैसे लिखेंगे. स्टेप 2 इज़ असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू Mn एंड Fe.
Mn को और Fe को ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे कितना है. कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल. देखो हमें दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, तो उनको लिख के रखना है. उसके बाद और आपको ये देखना है कि कोई अगर Fe2+ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होगा. Mn2+ है तो उसका ऑक्सीडेशन 2+ होगा, बिकॉज दे आर मोनोएटॉमिक. और आयंस यहाँ पे देखो Fe3+ है तो उसका ऑक्सीडेशन 3+ होगा. तो आपको MnO4- जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. सो अर्लियर वी स्टडीड हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर. अगर आपको Mn का फाइंड आउट करना है तो आप उसको x एज्यूम करेंगे. x + 4 मल्टीप्लाइड बाय -2. -2 क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो वहाँ पे 4 ऑक्सीजन है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2. दिस इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस. अभी चार्जेस कितना है इसके ऊपर? -1. सो दिस इज इक्वल टू -1. x प्लस -8 इज इक्वल टू -1. तो x इज इक्वल टू -1 + 8, तो +7 आंसर आता है. तो Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. और बाकी का तो हमें अपने आप मिल गया है. नाउ यू विल फाइंड आउट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो किसका इंक्रीज हुआ है? देखो चेंज स्पीसीज आर शोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन तो एक ही है कि उसके बाद में ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे. ओके, बिकॉज इट इज़ अनबैलेंस्ड. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिखेंगे. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आपको पता चलता है 2 से 4 तक, 4 से 5 तक. अगर नेगेटिव है तो वो -2 से 0 हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है वो. ओके, सो हियर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज, देखो दो स्पीसीज़ है, एक Mn है और एक Fe है. जो रिएक्टेंट है वहाँ से प्रोडक्ट में जाते समय कौन इंक्रीज हो रहा है वो देखना है हमें. तो Mn +7 है, बाद में +2 हो रहा है, तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट स्पीसीज इज Fe2+. इट इज़ +2 to +3. सो इट इज़ शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो Fe इज शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय, वो हमें लिखना है. Fe2+ रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में Fe3+ है. तो इंक्रीज कितने से हुआ? 3 - 2 इज़ 1. और दोनों जगह पे Fe एक ही है तो एक Fe के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बढ़ रहा है. नाउ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Mn पहले 7 है, बाद में 2 है. तो देखो 2 - 7 इज़ -5. बट हियर वी विल सब्ट्रैक्ट इन दिस वे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट and we will omit the sign. So decrease is 5 per atom. Now we have to make them equal. अभी 3 ऊपर 1 है और नीचे 5 है, तो हम इन्हें इक्वल कैसे कर सकते हैं? जो 1 है उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. So to make the net increase and net decrease equal, we must take 5 atoms of Fe2+. Okay? तो जहाँ जहाँ पे Fe लिखा है हम वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन रीराइट करेंगे. अंडरस्टूड? Fe को बैलेंस करना है हमें. सो MnO4- +5 Fe2, इट गिव्स Mn2+ + 5 Fe3+. स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग 4 H2O टू द राइट हैंड साइड. देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें पहले काउंट करना है कि कौन से साइड में ऑक्सीजन कम है. सो लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड है, वो हमें देखना है. अगर रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, एक ऑक्सीजन कम है तो हम उसके अपोजिट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. अगर 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे ऐसे. ओके, तो देखो अभी रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन एटम्स है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, तो हमें प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन की जगह पे 4 H2O ऐड करना है. सो MnO4 + 5 Fe2
it gives Mn2 plus 5Fe3 plus 4H2O in liquid form. अभी देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. So what about hydrogen atom which is added for oxygen in the form of water? So कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है. देखो 4 to the 8. So if the reaction is acidic medium, to make the charges of hydrogen atoms on both the side equal, add H plus 8 H plus ion on the left hand side. तो 8 H plus ion हमें reactant side में ऐड करने हैं. तो MnO4 minus plus 5Fe2 plus 8 H plus ions and then Mn2 plus 5Fe3 plus 4 water molecule. 4 is balanced equation. So now balanced equation is MnO4 minus plus 5Fe2 plus 8H plus ions. This gives Mn2 plus 5Fe3 plus or 4 water molecules. So this is the balanced equation in acidic medium. Okay. Even next equation is also there. तो आपको ये सॉल्व करना है. यू हैव टू मेंशन द स्टेप्स आल्सो, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरा लिखना है. नो नीड टू यूज शॉर्टकट्स. सो इट विल कम फॉर 3 to 4 marks. So you will solve the equation once again in your notebook. So we'll study the next my equation. Balance the following reaction by oxidation number method. CuO plus ammonia, it gives Cu plus N2 plus water molecule. Now step 1, write skeletal equation and balance the elements other than water, oxygen and hydrogen. पहले हम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करेंगे. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि बाद में हम उन्हें, ऑक्सीजन अगर कम है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से H प्लस ऐड करते हैं. सो दैट थिंग्स वी आर डूइंग आफ्टर 4th स्टेप. सो फर्स्ट वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल. CuO plus 2 ammonia, it gives Cu plus N2 plus water molecule. तो देखो Cu का हमें फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आप पहले लिखोगे -2 और हाइड्रोजन जहाँ पे है +2 लिखोगे, और जो सिंगल एलिमेंट है जैसे कॉपर है तो उसको 0 लिखोगे, और N2 है वो इट्स ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, न्यूट्रल है तो वो भी 0 है. ओके. तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पता है, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा है. नाइट्रोजन और कॉपर आपको फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो CuO में देखो, ऑक्सीजन अगर -2 है तो कॉपर +2 में होगा, बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल. और हम अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -3. सो हियर इट इज़ शोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन कौन दिखा रहा है? देखो कॉपर जो है पहले +2 में है, बाद में 0 है. देन नाइट्रोजन इज़ -3 एंड देन 0. सो वन इज़ शोइंग डिक्रीज एंड वन इज़ शोइंग इंक्रीज. सो दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. ऐसे कभी कभी होता है कि जिनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, सो दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज, इट इज़ अ नॉट रिडॉक्स रिएक्शन. सो इट विल नॉट बी बैलेंस्ड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सो अभी हम लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है? अमोनिया में. अमोनिया इट इज़ गोइंग टू शो, मतलब नाइट्रोजन अमोनिया से N2 में जा रहा है, तो नाइट्रोजन में इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और N2 में 0 है. सो -3 to 0 इंक्रीज पर एटम कितना है? 0 - -3 इट इज़ +3. तो 3 से इंक्रीज हो रहा है. और डिक्रीज़ किस में हो रहा है? तो कॉपर में. देखो CuO इज़ +2 और Cu इज़ 0. +2 से 0 मतलब 2 से 0 जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना. To make the net increase and net decrease equal,
वी मस्ट टेक 3 एटम्स ऑफ Cu एंड 2 एटम्स ऑफ NO। मतलब नाइट्रोजन जहाँ पे है वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉपर की जगह जहाँ है वहाँ पे 3 से करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सो टोटल 6 हो जाएंगे। तो हम वैसे लिखेंगे इक्वेशन को, विल री राइट, जहाँ पे कॉपर है वहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 CuO प्लस 2 अमोनिया, इट गिव्स 3 Cu प्लस नाइट्रोजन है वहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा है। सो 2 N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ओके, so balance the oxygen atom by adding 2 over here, 2 water molecule on the right side। ऑक्सीजन एटम कितने हैं वो पहले काउंट करो। देखो रिएक्टेंट साइड में 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो 3 और 1 डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 कहाँ पे कम है, प्रोडक्ट साइड में कम है। अगर 2 प्रोडक्ट साइड में कम है तो हम उस जगह पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। सो वी विल ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो 3 CuO प्लस 2 अमोनिया प्लस 3 Cu प्लस N2 प्लस 3 water molecule। Now charges are already balanced. Check out sides for balanced atoms and charges. The equation is obtained. It is balanced. So 3 CuO plus 2 ammonia plus 3 Cu plus N2 plus 3 water molecules. So this is balanced with respect to charges and number of atoms. See here, यहाँ पे N2 2 ऑलरेडी है इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। ओके, सो दिस 2 इक्वेशंस यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू विल प्रैक्टिस सच इक्वेशंस। जो एक्सरसाइज में है वो आपको करना है प्रैक्टिस। और जो ये नेक्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दिस इज़ नॉट देयर। सो टू यू विल राइट बोथ द इक्वेशंस in your notebook।